अस्सलाम वालेकुम। पहले मुझे ये बता दें मेरी स्लाइड शेयर हो रही? Yes, ma'am, your slides are visible and Okay, your voice is also very loud and clear. चलो, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for the introduction and also giving me this opportunity. I always be very happy and very keen to be here in order to share whatever I know about something and which could be useful for the participant. So, Assalamu alaikum, dear participants. How are you? कैसे हैं आप लोग? आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am, आपकी आवाज आ रही है very fine. So And it's the hope same you to are you. having जी बिल्कुल. So hope you are having जी a मैडम। good time and session with the all your session with the Punjab Higher Education Commission, and it will be definitely. I believe that it is a very good learning opportunity for you. Or this session is about the digital media, preparing, selecting teaching resources, and using audiovisual for the teaching. So what I want you is, okay, this I really want to have. I don't believe in lecturing only or telling you everything. So I believe that it should be an interactive session. So you can ask anything where you feel, or but I first of all what I request you is, so please when I'm talking, so keep your microphone off, because when you turned on your microphone, it will create a lot of distortion. अभी भी किसी का mic on है, और फिर whenever you feel you want to talk, you can turn on your mic and just you can ask your question or whatsoever. So I will be really welcoming your question and also want you to participate actively during this session, because this is not what I'm just going to tell you. It is something which we are going to mutually develop or build, what we can do for what are the challenges we have in today's classes and how we can overcome those, and also how we can get benefit of all the different types of digital resources, technology which we have these days with us. So how we can use them productively and constructively in our teaching learning process. So basically the focus is teaching learning process and how we can get out of it. So first of all, I'll start by asking you a question. Take a moment and then answer. So what is digital media? Just think for a while, 1 minute लें, सोचें, and then respond. मैडम मेरा ख्याल है कंप्यूटर रिलेटेड मीडिया जो होगा उसको हम डिजिटल कहेंगे, जिसके अंदर मोबाइल और इंटरनेट और दीगर चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा तो ये ख्याल है। हाँ, बिल्कुल सही है, right? And then one more thing, there is no right and wrong answer. Just you can say anything which you feel. जो आपको समझ में आता है, you can share. Don't hesitate. जी, anyone else who want to say something about? Screen जिसमें screen related material. जी, screen related है, जी बिल्कुल। और जी? अच्छा चले। So, technology related. Sorry, say again. The technology. Of course. So it is all related to the technology. So formally, we see what is digital media. So digital media actually, media is basically a word which comes from the Latin, and it is also means the medium. So that means it's a middle layer, or it's a channel through which we got the information from one source to the other. So if we just try to understand what the media means. So media, as you know already, that it is the channel or the middle layer or the medium or the channel through which we get information from one body to another. So if we look into a little bit historically into about this media thing, so what we know is that before the advent of the digital age,
So the most popular form of the media were what we were now called analog and the traditional media. So what were they? The books, the newspapers, the magazines, journals, and all the other type of traditional media. So that means that media means as we have talked, it is basically a medium through which we get information from one source to another. So if you look into the past, when we don't have this technological advancement with us, so what was the source of what was the medium through which we can get the information? These was definitely the books, the newspaper, the magazine, or the billboards means. आवाज नहीं आ रही सबको नहीं आ रही या किसी एक का इशू है? बाकी लोगों का क्या? जी बिल्कुल, चले वो थोड़ा सा आप अपना चेक कर लें जिनको नहीं आ रही अपने सॉरी आई एम सॉरी अबाउट दैट, लेकिन ये है कि कुछ अपने इंटरनेट की कनेक्टिविटी और उसको चेक कर लें, और अगर फिर भी नहीं होता तो एक दफा उसको दोबारा से शट डाउन करके, जब आप कोई भी अगर यूज कर रहे हैं मोबाइल से कर रहे हैं किसी से भी, दोबारा से जब उसको ऑन कर लेते हैं, रीस्टार्ट कर लेते हैं, तो वो इश्यू रिजॉल्व हो जाता है. So this was the books and the newspaper through which we can get, that was the only source of information to us. यानी जब books आ जाती थी, newspaper आ जाता था, तो उसी से हमें information मिलती थी. Then in the 19th century, the telegraph comes in. So telegraph was the first type of the media which actually disseminate the information quickly and speedily as compared to the past. देखिए बुक लिखी जाएगी और इसके बाद आपके पास मार्केट में आएगी, या किसी भी आप लाइब्रेरी जाएंगे तो उसको देखेंगे, और इसके बाद लेकिन टेलीग्राफ जो था वो was comparatively quicker as compared to all the past medias. And then in 20th century then comes the radio and the television. So then again these radio and television, we call them the mass media, because through the radio and the television, so the message is conveyed to the masses immediately, because wherever the radio transmission and the television transmission reach, so the people there can get the information quickly whenever the information is getting on air. So it was the 20th century. And then come the technological revolution, which was brought with many new types of media that now play a major role in disseminating information and entertainment to the populations around the world. So this type of media, which we call the computer, tablet, cell phone, web-based system, apps and everything, this is called the digital media, because this is all based on technology and the sophisticated equipments. ये सारी चीजें हैं. As you already said, कि all the media which is based on the computer, yes, based on screen, बिल्कुल सही है. All the technology, yes. So everything is right here. कि जितने भी आपके answers थे, कि अब now we call them the digital media. So these are all the and you know that okay, now we got the information very quickly as compared to the past. So this is what the main characteristics of digital media: quick information, quick access to the information. So digital media might come in the form of the videos, articles, advertisements, podcast, audiobooks, virtual reality, digital art. So these are the different forms through which we can get information, which are related to our teaching and learning process. So here in the entire session, our focus will be on the teaching learning processes. So when the use of internet has become very common in most of the world, the digital age was fully underway. So actually the main although the computer was there, but when it comes has changed the entire communication patterns of the world when with the internet. जो ही internet हमारी life में आ गया, so that has really changed the way we get the information, the way we communicate with each other. तो उससे था वो ज़्यादा एकदम से speedy change था that was there. And also nowadays what is happening? Every other day the new things they are keep coming, नई चीजें आती चली जा रही हैं, और हम जो है वो स्पीडी. अब देखिए 21st century, what is the characteristics of 21st century? Basically 21st century is being
different from the rest of the past centuries because of the speedy or accelerated growth of technology. तो हम कहते यही हैं कि why the 21st century is different from the past centuries, it is because of the every other day there is the new things they are keep coming. नई नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी, नई कुछ चीजें जो है वो आती चली जा रही हैं. So this is actually continuum, which is showing that how the learning paradigm or the learning processes has been changed with the passage of time, and how it is taking us towards the 21st century to the digital age. So first of all, what was the pattern of learning was the behaviorism. That was called behaviorism. So behaviorism means that whatever an individual learn, that should be obvious or clear from the exhibited from the behavior. जो कुछ उसने सीखा है वो उसको नजर आना चाहिए कुछ उसके एक्शन से. For example, anything which when we ask our student to learn something, so we ask them to say something for us. वो हमें सुनाए वो चीजें what they have learned. तो जब वो सुना देते हैं तो हम कहते हैं हाँ जी बस इनको आता है. So that is behaviorism. कि that should be clear, obvious from the exhibited from the behavior of the learner. जो learner बता देता है जो चीजें वो हमें explain कर देता है, हम कहते हैं इसको आता है. जो वो नहीं कर पाता और उसको वो हम कहते हैं कि उसका learning नहीं है. So that was the past primitive time. With the passage of time, cognitivism come in. Cognitivism means the thinking. It is taking a step beyond to the behaviorism. So thinking, because this is not the case. The education and the psychologists they said कि it is not everything that could be exhibited from the behavior. सब कुछ हम करके ही नहीं दिखाते. There are many things which are going on into our mind, into thinking process. हमारे दिमाग में चल रही होती हैं बहुत सारी बातें, हम सोच रहे होते हैं. There are many ideas which are going on into our mind. बहुत सारी चीजें होती हैं. So thinking basically, cognitivism means that thinking, and then we say yes, the individual can create something new, can build, has his own point of view. They can also be the participatory into their own learning process as well. क्योंकि behaviorism में was purely based on the teacher-centered approach. Whatever the teacher tell them, so they have to learn or then show from their actions. But cognitivism believe that yes, teacher is there, but it is not always the case that the students think the same way as the teacher tell them. So they have their own thinking, they have their own experiences. So based on that, वो उसको खुद भी कर सकते हैं. So that was the cognitivism. Then comes a constructivism. Constructivism is basically that we built our old information and new information based on our previous information. So constructivism means that we allow the individual to think and then create or build their own thinking as well. अपनी खुद से सोच के अपनी चीजों को, ideas को वो develop करें और वो बनाएं. That was the constructivism. So that is actually taking us from teacher-centered towards a student-centered approach gradually. Constructive approach, when you allow the student to think beyond what has been told into the class. ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हम when we teach into our classes different subjects, different ideas, so we give them the same examples and students learn the same example. इसके beyond वो सोच ही नहीं सकते हैं. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि न्यूटन्स 3 laws of motion हैं. So 3 laws of motion about when teaching the 3 laws of motion. So we हम उनको क्या करते हैं, बताते हैं कि एक लॉ ऑफ मोशन क्या है और उसकी ये एग्जांपल्स हैं. स्टूडेंट्स सिर्फ उन एग्जांपल्स को सोचते हैं. So that means कि they are unable to apply those theoretical concepts into their reality. अपनी डेली लाइफ में उसको अप्लाई नहीं कर सकते. तो कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि they should be able to apply those to their real life situation. अपने उसके अंदर उसको अप्लाई कर सके. This constructivism then took us into the 21st century, the digital age, which is purely the age of the information. So that means that access to the information in today's time is maximum. So students, they are no more entirely dependent on the teacher.
So they can get many information at their own subject. They have some system with them and internet connectivity. So there are lots laterally they could learn at their own many things relevant to the concept which is they are being studying into the class. So this is how the time has been changed, learning paradigm has been changed from behaviorism to the digital age to become them more independent learner. So it's a use of digital media. So one question that comes always in our mind as a teacher is that apart from the fact that we are now, I think many years has been passed, 21st century के भी कितने साल तो गुजर गए, अब तो 22nd जो काफी साल गुजर गए 21st century के भी, तो लेकिन अब हमने तब से when we have lots and lots of technological tool with us, but still we are not using them for our teaching learning process. अपने टीचिंग में हम उनको उस तरह से नहीं यूटिलाइज कर रहे, and also we are not involving our students into their learning process through these gadgets and the tools. So what is the reason? So the reason I've just tried to list it those reason. आप भी मेरे साथ share कर सकते हैं कि what could be the else reason. So now, what are the factors which affect the use of technology into teaching learning? Number one क्या है? Teachers' belief. That means teachers understanding that teachers believe that this technological tools, they are really beneficial, they are really good, and they should be utilized for the teaching learning purpose. सबसे पहले उसकी अपनी understanding वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसका ये belief होना चाहिए कि they are really beneficial, useful है, हमें उनको इस्तेमाल करना चाहिए. Number two क्या है? Intentions. So teacher belief तो रखता है, लेकिन either the teacher is really eager to use them, उसके intentions भी हैं, motivated है use करने में, और वो अगर वो motivated नहीं है तो बेशक कितना भी हम believe रख लें, लेकिन अगर हम उसको नहीं इस्तेमाल करते, that means हमारी intentions ही नहीं है और फिर वो उसका use कभी भी नहीं होता. Third point, resources, which is I think in most of the cases, I believe that you as a teacher, you know that there are many resources, utilization of the technology, and then you want to use them, but you say, okay, oh, we don't have the resources. कंप्यूटर लैब नहीं है, अगर कंप्यूटर लैब है तो आप कहते हैं अच्छा जी इंटरनेट नहीं है. सो इस तरह की चीजें हैं. सो दीज आर आई थिंक सम ऑफ द बैरियर्स और हमारी क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए क्यों यूज नहीं हो रही. एंड अबव ऑल इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है, आपका जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, वो कितना विलिंग है उन रिसोर्सेज को यूज करने में. आपके इंस्टीट्यूशन का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ वो उसको कितना विलिंगली यूज करना चाहता है. अगर वो खुद भी पता है उसको और वो यूज करना चाहता है तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर लेता है. And also one of the other factor, the policy context for the use of technology is also important, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसीज के डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उसके अंदर ही टेक्नोलॉजी की बात नहीं की गई, इसका मतलब है प्रैक्टिकली इट विल नॉट बी अवेलेबल. बट वी आर लकी that in 2008 and 9 was the time when the education policy alongside the main policy document, a separate document for the integration of technology into education was prepared. और उसका ICT policy strategy document उसका title है, और वो पहली दफा बना, और उसके अंदर they have in that particular document they have thoroughly talked about how the technology could be utilized and implemented into the classroom situation. So these are, I think, few of the points जिसको हम कहते हैं कि they are really making a barrier or the hindrance into the use of the technology. Any other point which you have, आप सोचते हो कि अच्छा हम टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज कर रहे, या उसको हम टीचिंग पर्पस से प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए पॉजिटिव क्यों नहीं यूज कर रहे अपने क्लासरूम और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में? Could you share anything which you have?
तो मैम अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा ठीक कर रहे हो अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, प्लीज बात करें। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है वो हमें इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि हम डिजिटल मीडिया को यूज करें। हाँ चलिए इस पर बात होती है। ये काइंडली किसी का माइक ऑन है, फिर अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि अपने माइक को बी केयरफुल अबाउट इट। अच्छा जी, चलिए जी, आपने बात की है कि हमारा एग्जाम सिस्टम जो है वो उसको यूज के लिए इनकरेज नहीं करता, क्योंकि आपके ख्याल में इसकी रीजन यही है ना कि वो कहता है कि जी रोट मेमोराइज करें, बस सिर्फ लर्न बाय हार्ट उसको कर लें चीजों को और उसकी एप्लीकेशन पे जाए। यही बात है ना, आप इसी पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैडम आपकी आवाज आ रही है। पार्टिसिपेंट काइंडली वन बाय वन आप माइक अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अच्छा चलिए, तो चलें वो उसके अंदर फिर यही देयर आर डिफरेंट रीजंस। मतलब वन ऑफ द आपने पीछे पॉइंट आउट की कि एग्जाम सिस्टम इज अगेन वन ऑफ द रीजन कि जिसमें वो इनकरेज ही नहीं करता किसी क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को। सो और उसके अंदर फिर बात भी यही आ जाती है ना, क्योंकि हम भी नहीं करते। ये रेसिप्रोकल है, एग्जाम सिस्टम और हमारा टीचिंग लर्निंग स्टाइल एंड हमारा टीचिंग लर्निंग स्टाइल। और सॉरी बोर्ड लगा सो एग्जाम सिस्टम एंड हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये रेसिप्रोकल है टू ईच अदर। सो मैडम may I add something? जी प्लीज जी। My name is Mohammed Saeed from Government Islamia College Gujranwala. Are you listening to me madam? जी हाँ जी, आ रही है आवाज आपकी, बिल्कुल बात करें जी। इसमें इस सिलसिले में वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें ना, जब भी कोई चेंज आती है एनवायरनमेंट में या सर्कमस्टांसेस में, ऑलमोस्ट 50% पीपल ऐसे होते हैं who want to retain their old traditions. तो यही आई थिंक दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन आवर एनवायरनमेंट कि ये जो चेंज आ रही है डिजिटल मीडिया और न्यू टेक्नोलॉजी की चेंज, हम बहसीयत एक जो टीचर्स हैं एक कम्युनिटी के हवाले से हम में से 50% वांट टू रिटेन द ओल्ड ट्रेडिशन, जिसमें हमारी जो है ना एज ए टीचर हमारा रोल ज्यादा होता है और हम चाहते हैं कि हम उसको रिटेन रखें। तो शायद ये भी वजह है कि हम मॉडर्निज्म को या न्यू टेक्नोलॉजीज को एज अ होल एक्सेप्ट करने में रिलक्टेंट हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। वैसे आपने बड़ी प्यारी बात कही है और मैं आई रियली अप्रिशिएट इसलिए भी कि आपने इस इतनी बड़ी जो कहते हैं ना एक इतनी बड़े जो हकीकत है, सच को आपने एक्सेप्ट किया है। यही रीजन है ना कि मतलब हम वो जैसे मैंने आपको जो पिछली स्लाइड दिखाई थी कि जिसके अंदर ये बात थी ना, बिलीफ, टीचर्स इंटेंशन। तो ये 2 पॉइंट ये कवर करता है कि जिसके अंदर हम उसको करना ही नहीं चाह रहे हैं और हम अभी तक भी देखें उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज हैपनिंग wherever, क्योंकि मैं तो अब बहुत सारे जगह पर ये टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड सेशंस देती हूँ, तो उसके अंदर एक चीज जो बड़ी मैंने कॉमन सी देखी है लोगों में कि वो हमेशा उसके जमाने की एग्जांपल्स देना शुरू कर देते हैं कि जी देखें जब हम ब्लैक बोर्ड और चौक से पढ़ाते थे तब तो बड़ी अच्छी लर्निंग थी और अब तो नहीं है। देखिए ब्लैक अभी भी हमारी सोसाइटी में, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अभी भी हमारी सोसाइटी में, हेलो जी बात करें। मैं अगर कंप्लीट कर लूं तो सर इजाजत है आप? जी जरूर। मैं ये गुजारिश कर रहा था, अभी भी हमारी सोसाइटी में लाख लोग ऐसे हैं, 90% लोग ऐसे हैं, 80% जो अभी भी ये कहते हैं यार वो पुराना जमाना अच्छा था। तो अगर उनसे पूछी ना यार पुराने जमाने में एसी नहीं था, रेफ्रिजरेटर नहीं था, मोटर बाइक नहीं थी, पंखे नहीं थे, बिजली नहीं थी, तो वो कैसे अच्छा हुआ? इवन देन दे से कि नहीं यार पुराना जमाना अच्छा था, पुराना जमाना अच्छा था। ये एक अजीब सी साइकी बन चुकी है हमारी नेशन की कि हम हमेशा गुजरे हुए जमाने को, पुरानी बातों को अच्छा समझते हैं। हालांकि अगर आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसके यूजेस और बेनिफिट्स को कंपेयर करें तो मैं आई कैन विद 100% श्योर अकबर आजम को भी
वो फैसिलिटीज हासिल नहीं थी, शहनशाह बाबर को भी वो सहूलियात नहीं थी जो आज एक आम सिटीजन, एक आम शहरी, एक आम इंसान जो है जिन चीजों को अवेल कर रहा है। बिल्कुल सही, वेरी ब्यूटीफुल। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये एक्चुअली देखिए ना, ये माइंड सेट अगर हम इसको विलिंगली चेंज करने पे हो जाए कि अच्छा, पर इसके यूज में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर हम उसको ग्रेजुअली, और फिर ये भी है कि चेंज एक दिन, एक सडनली नहीं आता, ओवरनाइट आता नहीं है, ग्रेजुअली आता है। जो बेसिक वजह है वो ये है कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने पे तो बिलीव करके काम करता था, लेकिन हम टेक्नोलॉजी को लर्निंग अबाउट टेक्नोलॉजी नहीं करते, हम टेक्नोलॉजी को सारा इस्तेमाल करना नहीं करते। अब जैसे कि आप हमारी एग्जामिनेशन में हम बेहतर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी मेरा कि उसमें हमारा पूरा एग्जामिनेशन रिटेंशन के ऊपर है, रट्टे के ऊपर है, रिप्रोड्यूस हमने करना होता है। अगर हम एग्जामिनेशन का स्टाइल कर दें, हम इसमें डिस्कशन ले आए, असाइनमेंट्स ले आए, क्विज ले आए और एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो, उसकी क्लैरिटी सब्जेक्ट मैटर्स हो, हालांकि फिर टेक्नोलॉजी हमारी बहुत मदद करेगी। लेकिन जैसे पेपर दे दिया जाए, 1 घंटा टाइम दे दिया जाए और मुझे ये कह दिया जाए कि तुमने इनकी बातों के जवाब देने जिनमें डेट्स हैं, डेफिनेशंस, रूट्स हैं, मुझे फिर रूट लर्निंग पे जाना पड़ेगा। इसी की मिसाल जो आपने हम रियलिटी कर रहे हैं, इसमें भी जो पेपर देना वो भी तो रूट लर्निंग की है। हमें आप इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है कि अगर हम उसको रात के 2-2 बजे तक याद ना करें, उनको रिमाइंड ना करें, तो हम बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारी असेसमेंट अगर आप लोगों ने करनी थी तो इसमें आप ग्रुप डिस्कशंस लेते, हमारे ओपिनियंस लेते, हमारी राय लेते, हमारे कमेंट्स लेते, और फिर देन यू हैव ए बेटर आइडिया कि हमने कितना। लेकिन हम ये सब कुछ कहते हैं हमने ये करना है, लेकिन हम उसी बात उसकी पुराने आर्ची टाइप पे, स्टीरियोटाइप पे रहते हैं, इसीलिए हमारे अंदर वो रेजिस्टेंस आती है और हम उसे मैडम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। हाँ नहीं, अच्छा, और उसमें देखिए ये जो सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ये अल्लामा इकबाल का शेर है, अल्लामा इकबाल का एक बड़ा अच्छा शेर है इस व्यू से कि आईने नो से डरना, आईने नो से डरना, तर्जे कोहत में अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए अल्लामा इकबाल की शायरी तो खैर बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसके बारे में तो बस हमें अपडेट करना है अपने आप को। दुनिया ने कर लिया, बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं, अभी हम इसी डिबेट में ही पड़े हुए हैं कि अच्छा पिछला जमाना अच्छा था या ये क्या सिस्टम है, क्योंकि हम सिर्फ टीचर्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन पे डाल देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन टीचर्स पे डालती है। मैं भी खुद भी एक यूनिवर्सिटी टीचर हूँ, ऐसा ही होता है। जब एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो वो कहते हैं जी टीचर कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, टीचर से बात करें टीचर कहते हैं जी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए कुछ नहीं करती। वो हमें एक दूसरे के ऊपर अभी ब्लेम गेम में ही चल रहे हैं, हम कोई इनिशिएटिव अपने तौर पे ले नहीं रहे हैं। द पॉइंट इज ये जो सारे जो वर्कशॉप और ये सारी चीजें एफर्ट्स हैं आपके लिए, ये सारा पर्पज यही है कि थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी थॉट प्रोवोकिंग चीजें आप सोचें, थिंक। ये जो हम एक तरफ चले जा रहे उसके अंदर थोड़ा सा रुक के सोचें कि हाँ ये भी एक तरीके है। और फिर एक बात और सोचो, बताओ मुझे, अब हमारे सामने स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड और चौक पुराने जमाने वाले नहीं हैं। अब हमारे सामने क्लास के अंदर वो स्टूडेंट्स हैं जिनके हाथों में टैब्स हैं, जिनके हाथों में स्मार्टफोन है। आपने उनको कैसे सिर्फ खाली एब्स्ट्रैक्शन में, रोड मेमोराइजेशन से आपने उनको कैसे सेटिस्फाई करना है? इसलिए बच्चे आजकल बागी हैं बिल्कुल पढ़ाई से। हम देखते हैं ना हमारे बच्चे, इर्द गिर्द के बच्चे, वो बिल्कुल उनको फोर्स करना पड़ रहा है, हमें लाना जबरदस्ती पड़ रहा है उनको पढ़ाई की तरफ। वो आना ही नहीं, इसलिए कि उनको अदर एक्टिविटीज ज्यादा अच्छी लगती हैं। मेरा स्टैंस, जब ये मेरी जो एक मिशन है इस सिलसिले में, वो ये है कि हम इस टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज या इसके बारे में करने की बजाय, या हम इसको जब हमने अपने बच्चों के हाथ में दे दिया है, तो अब उन बच्चों ने क्या सीखा इस टेक्नोलॉजी से? उन्होंने इसका यूज सिर्फ इतना किया है कि उनको लगता है कि इससे सिर्फ एंटरटेनमेंट की पर्पज से, चाहे उनके हाथ में टैब है, चाहे उनके हाथ में स्मार्टफोन है, या वो लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं, वो गेम्स खेल रहे हैं, वो वीडियोस देख रहे हैं, इसके अलावा उनको कुछ नहीं पता कि इसका यूज और क्या है। उन्होंने आंख जिस माहौल में खोली, उनको यही लगता है कि ये जो फन एंटरटेनमेंट सिर्फ इसके लिए गैजेट आए। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन ये है कि हमने उनको ये बताना है कि नहीं, ये सिर्फ फन या एंटरटेनमेंट नहीं है, इसके अंदर आप ही की लर्निंग और एजुकेशन के लिए बहुत सारा मटेरियल मौजूद है।
आप वो गैजेट्स अब हम उनसे ले नहीं सकते हैं। अब वो टाइम आ गया, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम घरों के अंदर मोबाइल भी बैन कर दें, टैब्स भी बैन कर दें और हम उसको दोबारा उस वाले जमाने में ले जाएं। ये पॉसिबल नहीं है, दुनिया के साथ चलना है हमने। लेकिन हमने अब वो चीजें, अब देखिए बच्चे भी पढ़ाई की तरफ आ जाएंगे जब उनको लगेगा कि हाँ उसी टैब में से, उसी लैपटॉप में से, उसी स्मार्टफोन में से उसकी स्टडीज के लिए चीजें जब हेल्पिंग निकल रही हैं, वो डेफिनेटली उसको उस तरह से यूज करेगा। द पॉइंट इज दिस। सो दैट इज व्हाट, मेरा जो मिशन है वो यही है। जब मैं इस तरह के सेशंस लेती हूँ तो मैं इसी मिशन के साथ चल के जा रही हूँ कि हमने इन गैजेट्स को उनके हाथों से लेना नहीं है, लेकिन इन गैजेट का पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव यूज बताना है। जब वो इस कंस्ट्रक्टिव यूज देखें, उन पे प्रेशर है पढ़ने का, उनको पता है उन्होंने पढ़ना है, लेकिन जब उनको लगेगा कि इन्हीं टैब्स और गैजेट के साथ ही उनकी लर्निंग हो रही है, उनको फैसिलिटेट हो रहे हैं, उनमें हो रहे हैं, दे विल बी ईगर, दे विल बी हैप्पी, वो यूज करेंगे। अभी तक हमने उनको चूंकि बताया ही नहीं है इसका क्या इस्तेमाल है, तो वो सिर्फ उसको वीडियो गेम्स के लिए, वीडियो वॉचिंग के लिए या सोशल मीडिया के लिए, अब हर बच्चा इस वक्त व्हाट्सएप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, पता नहीं किस किस के ऊपर क्या सारा सिलसिला चल रहा है। फिर हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं, बच्चों को हम डांटते हैं कि भी तुम हर वक्त इसके ऊपर लगे रहते हो, हर वक्त तुम इस तरह की बातें करते हो। अब हमने दूसरा यूज उनको बताया ही नहीं है ना, हम मान लेना, इस बात को एडमिट कर ले कि हमने उनको दूसरा यूज बताया ही नहीं है इसका। सो दैट इज व्हाट द पर्पस इज। अब जब ट्रेनिंग सेशन भी होते हैं या हमारे ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं, हम रेजिस्टेंट हो जाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं वो पुराना जमाना अच्छा था, या हम इतने एफर्ट क्यों करें, बस जो जैसा काम चल रहा है वो चल, तो बात उससे आगे नहीं बनती है। चलिए, अप्रोचेस जो है, 3 वेज हैं जो हम टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। वो 3 अप्रोचेस क्या हैं? लर्निंग विद टेक्नोलॉजी, यानी टीचर्स, सबसे पहले है लर्निंग अबाउट टेक्नोलॉजी। सो लर्निंग अबाउट टेक्नोलॉजी मीन्स के टीचर्स एंड द लर्नर्स दे डेवलप द स्किल्स एंड द नॉलेज कि कैसे यूज करना है अबाउट टेक्नोलॉजी। देन लर्निंग विद टेक्नोलॉजी मीन्स के teacher and learner use technology resources to support the classroom curriculum. And then learning through technology means that teacher and learner use technology to transform the process of teaching and learning and in new ways. So these are the 3 approaches. हम इसको gradually, यानी सबसे पहले learning about technology से हम start करेंगे. So that means that we can train the teachers or train the students and develop them those skills which will be helpful for them. Then with technology आएगा, and then through technology की बात आएगी. So that is about the background, and then next we will discuss the digital media tools कौन से हैं. अच्छा, अब इसके अंदर the one thing which I tell you this कि मैंने I have included only those tools which are easily available to us. दुनिया में बहुत सारे, अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च डालेंगे, लिखेंगे digital media tools, तो लंबी लिस्ट उन टूल्स की आएगी. I did not involve them, I did not cover them because कि इसके अंदर पहले हम जो बेसिक टूल जो हमें अवेलेबल हैं, उनमें से हम बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा चेंज और रेवोल्यूशन ला सकते हैं, उसके अंदर कोई मसला नहीं है. So that's why I've just covered those things which are available to us, so that आप ये ना कहें कि अच्छा जी पता नहीं मैडम कौन कौन सी चीजों की बात कर रही हैं, वो तो हमें पता ही नहीं है और हम माने. So कौन कौन से टूल्स हमारे पास हैं ये देखें. वी आर फेमिलियर विद द पीसीज. सबसे पहले कंप्यूटर हमारे पास जो आया वो इस पीसीज और इस फॉर्म में आया, और देन फिर हमारे पास लैपटॉप्स आ गए. लैपटॉप वाज द सिस्टम जो कि हमारे लिए मोबाइल हो गया, यानी पहले जो कंप्यूटर वगैरह थे वो तो एक ही जगह पर पड़े हुए हैं. सो मोबिलिटी आ गई हमारे पास थ्रू द लैपटॉप्स. एंड देन दिस नोटपैड. नोटपैड जो है वो एक बहुत छोटा सा स्मॉल बहुत लाइटर वर्जन होता है. अब नोटपैड के बाद फिर टैब्स आ गए ना, पहले लैपटॉप के बाद नोटपैड आया जो कि बहुत छोटा स्मॉल सा होता है, बहुत लाइट वेट था, जिसको आप अपने बैग में डाल के चल सकते थे. और ये बहुत पॉपुलर हुआ जो जर्नलिज्म और जो रिपोर्टर्स थे, क्योंकि वो अपनी सारे नोट्स इसके ऊपर टाइप कर लिया करते थे. इट वाज लाइटर टू कैरी. सो अब ये चीजें हमारे पास हैं जिससे हम वी कैन टेक लॉट्स ऑफ बेनिफिट. देन व्हेन कम्स द इंटरनेट. अब विद द इंटरनेट व्हाट वी हैव और उसके टूल्स कौन कौन से आ गए. एक्चुअली इंटरनेट के आने से क्या हुआ, ये जो पीसीज और लैपटॉप्स, इन्होंने हमारे प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग थी उसको फैसिलिटेट किया. इंटरनेट ने क्या किया, कम्युनिकेशन को क्विक कर दिया.
कनेक्टिविटी मैक्सिमम हो गई, हम वी गॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, क्विक कम्युनिकेशन। अब उसके अंदर क्या था, ईमेल। अब पहले हम ईमेल जो थे वो कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहला जो सोर्स हम यूज करते थे वो ईमेल था, वी यूज टू सेंड द ईमेल, अभी भी हम यूज करते हैं उसको। लेकिन अब देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम और कितनी ज्यादा सोफिस्टिकेशन हो गई है। अब ईमेल का मुझे लगता है ग्रेजुअली थोड़ा सा यूज कम हो गया है, उसकी जगह व्हाट्सएप और अदर मैसेजेस जो हैं वो हम एक दूसरे को कर देते हैं। दैट इज हाउ वी आर communicating with each other. Then we have these browsers, जो सर्च इंजन है हमारे पास, गूगल, याहू, MSN, जिससे हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। एंड देन वी हैव दीज ब्राउजर्स, जैसे क्रोम है, मोजिला है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। सो दीज आर द डिफरेंट ब्राउजर जो कि हमारे लिए इंफॉर्मेशन जो है वो, जिससे हम वेब से कनेक्ट होके इंफॉर्मेशन जो है वो हम लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें हमारे पास अवेलेबल हैं जिसको हम डाउनलोड करते हैं या हमें पता चलता है कि क्या है। सो दिस इज व्हाट। एंड देन वी हैव दिस ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब देखिए ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है जिसमें के पीपल दे आर सिटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बट दे आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू द स्क्रीन। अब पहले ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक्चुअली इन दो चीजों का जो यूज था सबसे पहले बिजनेस पर्पसेस के लिए हुआ। जब multinational companies, those who are working in different countries, so when they used to talk to each other, and then not only one person talking to one person, they want to have a conference call. तो पहले वो ऑडियो फोन से कॉन्फ्रेंस कॉल करते थे, but with the passage of time now we have this वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस तरह से स्टार्ट हुई कि सबसे पहले इट वाज स्टार्टेड थ्रू अ लार्जर इक्विपमेंट, जिसके लिए एक पूरा रूम चाहिए होता था, उसमें स्क्रीन लगी होती थी, माइक्स लगे होते थे और पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के यूनिट्स थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वी डोंट नीड दैम। अब हमारे पास सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्काइप के थ्रू आ गई, कि थ्रू स्काइप वी कैन सी ईच अदर, वी कैन टॉक टू ईच अदर। एंड देन अब आप देखें बहुत सारे मोड्स आ गए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, जिसमें हम जो है फोन के ऊपर लाइव चैट जब हम करते हैं तो वी कैन सी ईच अदर। सो थ्रू दिस क्या होता था कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थी, मल्टीनेशनल कंपनीज, सो दे आर सिटिंग इन डिफरेंट areas of the world or the country or whatever, but they are talking to each other, talking their business plans or whatsoever. But we can use them very effectively for the educational purposes as well, for sharing of the expertise. For instance, किसी एक कॉलेज के अंदर कोई एक टीचर है who is very good in his or her subject, तो आप दूसरा जो कॉलेज है, दूसरा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, can take benefit from it. और वो इसी तरह से अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी इसलिए है कि इट इज अ लाइव चैट थिंग, कि इंटरैक्टिव है। आप जो ऑडियंस हैं वो अक्रॉस द स्क्रीन, दे कैन आस्क क्वेश्चन, दे आर गिविंग द आंसर टू ईच अदर। यानी उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे हम कोई इंफॉर्मेशन भेज दें और उसके बाद उसका कोई रिप्लाई आए। सो इट इज अ लाइव chat and video communication. So that is very successfully being utilized in the educational purposes. Classroom के अंदर हमने अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत मेनी इयर्स बैक हमने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक इंटरनेशनल फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ अपना एक कोर्स रन किया था। उनके टीचर और स्टूडेंट भी बैठे होते थे, हमारे भी बैठे होते थे। इट वाज अ कोलैबोरेटिव कोर्स। दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट एंड वेरी गुड एक्सपेरिमेंट इन अ एक्सपीरियंस, इन अ सेंस कि वहां के फिर वी कैन गेट बेनिफिट ऑफ देयर एक्सपर्टीज एंड ऑल दैट। Then these digital libraries, of course, we don't have now in our libraries वो जो बड़े बड़े boxes होते थे और जिसमें के library cards जो मौजूद होते थे। Now we just have one or two systems, computers lying there, and they have all information of the library. And then this is what I have been using this feature of the computer very successfully with my students by giving them assignments, जैसे newsletter, poster और इसके बाद brochures. So they can develop their own posters, brochures and the newsletter. अब ये एक्टिविटी है, पहले उनको बता दी जाती है, इसके बाद we can involve them कि they can create. पहले तो ये होता था कि have to design a poster, तो we need some artist, फिर हम प्रेस में लेके जाते थे, उसको पब्लिश होता था
और फिर बाद इसी तरह से न्यूज़लेटर भी क्या होता है, न्यूज़लेटर यू नो वेरी वेल कि एक जैसे फॉर इंस्टेंस आपका एक डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट एक सोचे कि अच्छा हम अपना न्यूज़लेटर करेंगे, वो वीकली या मंथली इंफॉर्मेशन जो है, न्यूज़ जो है अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटी से रिलेटेड उसमें है। सो आप यू कैन गिव योर स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स ऑफ, और आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, दे विल बी इन्वॉल्व। अब इसके अंदर हमें वी डोंट नीड टू बी कि हम आर्टिस्ट हों या हम कुछ ऐसी बात हो। देयर आर लॉट्स ऑफ इमेजेस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। हम इंटरनेट में बहुत सारी डिजाइनिंग और खुद से ही कर सकते हैं, तो वो कलर्स और ये सारी चीजें कर सकते हैं। सो आप अपने स्टूडेंट्स को बाय गिविंग असाइनमेंट्स रेलेवेंट टू योर सब्जेक्ट एरिया यू कैन इन्वॉल्व देम। अब आप ये देखें कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आई हैव एक्सपेरिमेंटेड देम वेरी सक्सेसफुली। अब मैंने क्या किया कि अपनी टीचिंग के अंदर उनको वो जो लेक्चर और वो डिस्कशन तो होती थी, लेकिन असाइनमेंट की नेचर चेंज कर। अब वो सारी इसी तरह की एक्टिविटीज उनको कहा कि वो अपनी वो बनाएं और उसके बाद वो सबमिट करें, सो दैट वो बिजी, वो लर्न भी करें और वो बिजी भी हो, वो इसी चीजों को यूटिलाइज करके ऐसी चीजें जो है वो उसमें से क्रिएट करें। So these are different tools of the technological tools which can be very effectively utilized for you as a teacher can use them very effectively for the teaching learning purposes. So then this is again one of the way जिसमें आप अपने students को involve कर सकते हैं। portfolio क्या होता है? What is meant by portfolio? Are you familiar with this term before? पता है आपको? और उसका कोई पर्पस आप में से कोई बताएगा? Combination of your investment in different areas. ठीक है. Anyone else? Portfolio means the position you are occupying. नहीं, वो पोर्टफोलियो डिफरेंट होता है। वो जॉब पोर्टफोलियो का वो एक होता है कि जो आप ऑफिस जो होता है, ये वो पोर्टफोलियो है जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए उससे यूज होता है। वो जो जॉब वाला प्रोफाइल होता है पोर्टफोलियो, वो डिफरेंट होता है। अच्छा जी, अच्छा जी। पोर्टफोलियो का आपको पता है ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है? कहीं कभी कोई फाइन आर्ट्स में से है? आप में से फाइन आर्ट्स के लोग हैं इस आपके वर्कशॉप में, पार्टिसिपेंट्स में? एक्चुअली द पोर्टफोलियो का जो कॉन्सेप्ट है, जो वर्ड है, दैट कम्स फ्रॉम द फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स से इस तरह से आया कि द वन हु इज आर्टिस्ट या फोटोग्राफर है, वो जो भी कोई उसकी स्पेशलिटी है, वो क्या करते थे, अगर आपको कहीं देखा हो किसी को कि इधर समवन इज अ फोटोग्राफर और वो कोई आर्टिस्ट है, पेंट करता है, ये कुछ क्या करता है, वो क्या करता है कि द बेस्ट पीसेस ऑफ हिज और हर पेंटिंग एक बड़ा सा बैग होता है फाइल टाइप, उसके अंदर वो उनको लगा देता है। और फिर वो क्या है कि वो दैट इज यूज्ड फॉर, जब आप कहीं जॉब के लिए गया या उसने कहीं पर कोई भी प्रोजेक्ट असाइनमेंट के लिए, तो वो उसको दिखाता है कि देखो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, ये मेरी स्किल्स हैं, ये मेरा काम है, जो कि मैंने इसी तरह से फोटोग्राफर भी जो बेस्ट पिक्चर्स होती हैं उसके लिए, जैसे फोटो एल्बम नहीं होती है, इसी तरह से उसको एक जगह कर लेता है और वो दिखाता है कि देखें ये स्किल्स है, मैं इतनी अच्छी पिक्चर्स जो है वो ले सकता हूँ। पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये होता है कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ the work done by any person, कोई भी है। अब हम इसको टीचिंग लर्निंग में पोर्टफोलियो को हम इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से यूज करते हैं कि हम इसको कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस और उसके वर्क को कहते हैं। आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि टीचर्स ने फाइल बनाई हुई होती है। जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो उस फाइल को टीचर्स दिखा देती हैं कि देखिए ये वो पूरे महीने का काम है जो आपके बच्चे ने किया। वो भी एक काइंड ऑफ पोर्टफोलियो है कि यू कैन सी के योर चाइल्ड प्रोग्रेस फ्रॉम इन थ्रू आउट द मंथ टाइम, या उसके अंदर आप उसकी वो देख सकते हैं। अब क्या है कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ, ये तो खैर वही लिखा हुआ है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, व्हेन वी हैव टेक्नोलॉजी विद अस, नाउ वी आर शिफ्टेड टू द इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो, जिसको हम ई पोर्टफोलियो कहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो जो है वो हमें बड़ी अच्छी तरह से
इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो को हम डेवलप कर सकते हैं सिस्टम्स के ऊपर, लैपटॉप पे या उससे बना सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी. सो इट इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर. और यू आस्क योर स्टूडेंट्स कि आप अपने पोर्टफोलियो की उनको शुरू में, साल के शुरू में, सेमेस्टर के शुरू में ये असाइनमेंट दे दें, और उसके बाद फिर आप उनको थोड़ी सी इसकी स्किल्स बता दें कि आपने किस तरह से करना है. तो स्टूडेंट्स को ये कहें कि उन्होंने जो भी असाइनमेंट्स किए हैं अपनी, जो कोई उनका जो प्रोजेक्ट्स हैं, या जो भी आप उनको पूरे स्टडी टाइम के अंदर उनको असाइन करते हैं, तो उसको उसके अंदर वो सेव कर लेते हैं. ई पोर्टफोलियो जो सिंपल पोर्टफोलियो है, that just allow us to have a collection of hard copied material. यानी उसके अंदर सिर्फ जाहिर है, जो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो बच्चों की फाइल है या आपके स्टूडेंट की जो फाइल होती है, उसके अंदर वो पेजेस, वो चीजें उसके अंदर होंगी जो किसी पेपर पे या उसके ऊपर बनी होती है. लेकिन ई पोर्टफोलियो हैज प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटी ऑफ ऑडियो एंड द वीडियो एंड द एनिमेशन टू बी covered in this particular thing. हम इसके अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी सेव कर सकते हैं, वीडियोस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई और चीजें, एनिमेशन और ये सारी चीजें जो है वो ऐड कर सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव एंड यूजफुल एक्टिविटी जो आप अपने स्टूडेंट्स को असाइन करें. आप उनको थोड़ा सा बता दें, और उसके बाद आप उनसे कहें कि जो भी आपके काम आपने थ्रू आउट द सेमेस्टर या ईयर किए हुए हैं उसके अंदर सेव करें. या जैसे एक स्टूडेंट है, वो डिबेटर है, उसकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, तो वो अपने सर्टिफिकेट्स, अपनी जो डिबेट के लिए जो वीडियोस कहीं किसी ने बनाई हो, उस चीज की वो उसको रिकॉर्ड करके उसके अंदर लगा सकता है. तो इस तरह से उनका एक प्रोफाइल डेवलप होता है. यू एज अ टीचर, यू कैन ऑल्सो डेवलप ई पोर्टफोलियोज ऑफ योर स्टूडेंट्स. जो स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है, जो भी जिस तरह से भी आप चाह रहे हैं कि हमने उसको एक ट्रैक करना है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग और पूरे साल के लिए, आप उसके लिए उसको उसके हर फॉर्म में उसको सेव कर सकते हैं. सो दिस इज वेरी यूजफुल एक्टिविटी. अब ये जो कैसे हमने, आपका सवाल डेफिनेटली होगा कि बता तो रही है मैडम, लेकिन कैसे है. अब पोर्टफोलियो क्रिएट करना इज वेरी इजी. पोर्टफोलियो जेन एक वेबसाइट है जो कि ये उसका लिंक है. ये आपको आप यहाँ से पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं. वो आपको अलाउ करती है कि आप एक बहुत बेसिक जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं. या दूसरी एक चीज है जो मैंने जस्ट फॉरगॉट टू राइट हियर, वो है गूगल साइट्स. गूगल साइट्स भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं टू यू कैन डेवलप योर ओन पोर्टफोलियो. आप वहां से अपना पोर्टफोलियो खुद या आपके स्टूडेंट्स को जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए. सो दैट इज रियली आपके असेसमेंट पर्पस के लिए बहुत हेल्प करता है. जब आप अपने स्टूडेंट को असेस करने जा रहे होते हैं, उसके लिए बहुत हेल्प करता है. सो अनदर रिसोर्स व्हिच वी कैन यूज इज द एजुकेशनल वीडियोस. एजुकेशनल वीडियोस में मेरा ख्याल है आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन much, you know better कि audio visual material provides a rich medium for teaching and learning. यानी एक चीज आप वर्बली बता रहे हैं, लेकिन एक चीज वो है जिसको आप दिखा रहे हैं by showing them और in the form of the movement, मूवी की फॉर्म में. तो वो that is very attractive for the students and the good learning resource for the students. So video can effectively communicate complex information to students and if used creatively can become a powerful expressive tool. देखिए आजकल क्या है, बच्चे जो हैं वो बड़े यूज्ड टू हैं वीडियोस बनाने की. हर टाइम पे आपने देखा होगा कि वो कोई ना कोई ऊट पटांग किस्म की वीडियोस बना रहे होते हैं. सो व्हाई नॉट कि हम उनको असाइनमेंट्स दें ऐसी जिसमें कि वो एजुकेशन अपने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है कुछ वीडियो में आप उनको ऐसी असाइनमेंट दे दें जिसमें वो खुद से बनाएं या आप उनको दिखा दें. सो आप उसको बहुत ज्यादा क्रिएट मोटिवेटिंग, मेमोरेबल एंड इंक्लूसिव लर्निंग एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड कर सकते हैं बाय शोइंग देम द वीडियो. अच्छा, अब उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल साइंस टीचिंग के लिए स्पेसिफिकली मैंने ये देखा है कि वीडियोस में आप वो चीजें, वो प्रोसेसेस भी दिखा सकते हैं जो कि किसी तरह से वैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी एनिमेटेड वीडियोस जो है वो अवेलेबल हैं. अब वीडियो हमें किस तरह हेल्प करती हैं? वीडियो हमें इस तरह से हेल्प करती हैं कि जैसे वर्चुअल फील्ड ट्रिप है,
आपने कि कोई हिस्टोरिकली हिस्ट्री पढ़ाते हुए आप उनको कोई जगह के बारे में बता रहे हैं, कुछ ऐसा है, या आप किसी ऐसी जगह के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या होता है, तो वो अगर आप बच्चों को नहीं भी लेके जा सकते तो आप उसका वर्चुअली उनको थ्रू द एक पूरा उसका राउंड जो है वो या ट्रिप करवा सकते हैं। फिर इसी बार टेलिंग द स्टोरी, डिजिटल स्टोरी टेलिंग एक पूरा एक टॉपिक है जिसमें कि बहुत सारी चीजों के बारे में आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह से लर्नर्स जो हैं वो आप देखिए क्लास के अंदर अब आप जाएंगे और लेक्चर शुरू कर देंगे तो बच्चे बड़े उसी रूटीन में सुनते भी हैं, आपकी बात को नहीं भी सुनते हैं, लेकिन अगर आप उनको कहेंगे कि अच्छा आज हमने अपनी स्टडी से रिलेटेड वीडियो भी देखनी है तो बड़े खुश हो जाएंगे और इसके बाद वो कहेंगे कि जी हम वो आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे आपके साथ। फिर इसी तरह से हिस्टोरिकल चीज़ों को, डेमोन्स्ट्रेशंस को, ये चीज़ें आप वीडियो के थ्रू उनको बहुत इफेक्टिवली और कन्वीनियंटली उनको दिखा सकते हैं। अब वीडियो लर्निंग के एडवांटेजेस क्या हैं कि वीडियो लर्निंग जो है वो कंट्रोल पेस ऑफ लर्निंग। पेस ऑफ लर्निंग क्या है आप देखें, आपको पता है कि क्लास के अंदर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द स्टूडेंट्स। एक होते हैं क्विक लर्नर, एवरेज और स्लो लर्नर, यही होते हैं ना तीनों तरह के। अच्छा, वी टीच देम, हम जो ज्यादातर हमारी टीचिंग है वो फोकस करती है एवरेज लर्नर। हम बेचारे जो क्विक लर्नर है, जो हम कहते हैं जीनियस है, वो भी इफेक्ट होते हैं और स्लो लर्नर भी इफेक्ट होते हैं। अब पेस ऑफ लर्निंग क्या है कि जो स्लो लर्नर होते हैं वो बेचारे कहीं बाय डिफॉल्ट ऐसे नहीं होते कि वो डम होते हैं। क्या होता है एक्चुअली पेस ऑफ लर्निंग, कुछ स्टूडेंट क्विक लर्नर जो होते हैं वो एक ही दफा बात बता दी जाए उनको समझ में आ जाती है, लेकिन देर आर, हमें भी पता है बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि हमें वी हैव टू रिपीट इट नंबर ऑफ टाइम्स। सो बाय कीपिंग इन व्यू कि हमारे पास क्लास के अंदर इतना टाइम नहीं है कि हम बार बार रिपीट करें, तो वीडियो जो है वो पेस ऑफ के अपने, जब हम उनको कह देंगे अच्छा आप ये आपके कॉन्सेप्ट से, टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो आप उसको घर जाके देखें और वो बार बार उसको प्ले करके, तो उनको उसकी लर्निंग जो है वो ईजी हो जाती है, उनको समझ में आ जाती है बात। तो इससे हम कहते हैं कि ये कंट्रोल करता है पेस ऑफ लर्निंग को। देन वीडियो लर्निंग कैन बी अडेप्टिव टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, यानी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो वर्बल के तो बिल्कुल समझ नहीं आती अनलेस एंड अनटिल वी शो देम समथिंग। देन वीडियोस आर पोर्टेबल, अगेन वही है कि आप अपना, अगर फॉर इंस्टेंस आपने कहा कि मैंने अपने लेसन की वीडियो बना ली है, मैं लेसन दे रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, उसकी वीडियो आपने स्टूडेंट को भेज दी है, अब उसको बार बार रिप्ले करके, सो दैट मीन्स कि पोर्टेबिलिटी है, एक जगह से आप दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर सकते हैं और फिर इसके बाद आप उनको मेकिंग वीडियो की असाइनमेंट भी दे सकते हैं। इसी वीडियो से रिलेटेड क्या है कि यूट्यूब, अब सोर्स क्या है हमारे पास, सारी वीडियोस हम नहीं बना सकते, लेकिन आप, यू आर फेमिलियर विद द यूट्यूब, एवरीबॉडी आई थिंक नाउ इन दिस टाइम इज क्वाइट Sorry, YouTube is a fantastic tool, and it has a collection of, I think, million and billions of videos इसके अंदर अवेलेबल है। और ये एक ऐसा टूल है जो फ्रीली अवेलेबल है सब, you don't have to buy, you don't have to pay to watch any video on the YouTube, all videos they are free। तो इसके अंदर एक्सेस जो है वो आपकी बड़ी इजी है, फ्री है, और thousands and hundreds of videos related to the education. I'm not talking about the entertainment videos, different topics of education जो है उसके ऊपर बहुत सारी videos जो है वो available हैं। फिर इसके बाद क्या है कि use short clips for documentaries to provide context to a topic। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि if you are there into the class और आपने कहा कि हम एक वीडियो देखेंगे, तो आप छोटा सा कोई भी अपने रिलेटेड टू द टॉपिक जो है वो अपना उसके अंदर अगर शॉर्ट क्लिप ऐड कर लेते हैं, सो दैट मेक योर टीचिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड आल्सो दैट इज गोइंग टू इन्वॉल्व योर स्टूडेंट इनटू योर टीचिंग एज वेल। अब इसमें क्या है कि YouTube EDU, ये वो वेबसाइट है जहां पर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मौजूद। अब अदरवाइज आप ओपनली भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ केस। आप YouTube पे जाएं और अपने टॉपिक से रिलेटेड अपना टॉपिक लिखें, तो उससे बेशुमार मेनी वीडियोस जो हैं वो अपीयर हो जाएंगी, एंड देन यू वॉच देम एंड सेलेक्ट कि हाउ टू शो देम, कौन सी वाली जो है उसको दिखाना है। सो फिर देन वीडियोस जो हैं वो दे एंगेज विद योर लर्नर्स विद योर लेसन। ये पहले भी हमने ये देखा था, पढ़ा था कि इससे लर्नर जो है वो एंगेज हो जाते हैं। देन
आप अपने you can set an assignment that requires student to reach and make their own videos to be later played in the class. अब ये वाली assignments मैं आपको इसलिए इसके अंदर कवर किया है कि मैंने उनको खुद अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारी असाइनमेंट्स देती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कि जिसमें वो खुद बनाए। देखिए आजकल, तभी मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था आपसे कि स्टूडेंट्स जो हैं हर वक्त अपने मोबाइल से सेल्फियां बना रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, उनको पता है। अच्छा, फिर वो वीडियो एडिटिंग भी करते हैं। बहुत सारे एप्स जो कि अवेलेबल हैं नाउ, और वो अपने मोबाइल से टैब्स के ऊपर वो यूज करके वीडियोस के अंदर वो साउंड इफेक्ट्स डाल रहे होते हैं, उसके साथ सॉन्ग्स भी डाल रहे होते हैं, इतनी क्या क्या कुछ कर लेते हैं। तो दैट मीन्स कि उनके पास ये स्किल्स हैं। द पॉइंट इज कि हमने उनको कैसे एंगेज करना है उसके अंदर कि हम अपने टॉपिक से, अब जैसे मैं अपने टॉपिक से रिलेटेड ऐसे उनको कहती हूँ कि अच्छा चलिए आप वीडियोस, आप सब स्टूडेंट ने 10 मिनट की एक वीडियो बनानी है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे। अब वो क्या है कि जितनी भी कहीं पर अब इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस वो बना के ले आते हैं, कहीं पर लिटरिंग है, कहीं पर जो है वो गैस एमिशन है, कहीं है। अब उसके बाद मैं कहती हूँ अच्छा चलिए आप इसके सोल्यूशन भी बताएं कि आपने वीडियो बनाई और देखा कि ये चीज बड़ी जो है ना इफेक्ट कर रही है हमारे एनवायरनमेंट को, तो हम इसको किस तरह से। सो दैट मीन्स कि देयर आर मेनी थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन वन एक्टिविटी। एक तो वीडियो मेकिंग है, प्लस अब वो बनाएंगे फिर क्लास में प्रेजेंट करेंगे, प्लस सेंसिटाइजेशन। शायद हम वर्बली उनको कितना भी बताते रहे कि अच्छा जी एयर पोल्यूशन है तो लिटरिंग है और वाटर पोल्यूशन है, सारा कुछ है, शायद उनको इतनी उसकी सेंसिटिव नेचर का नहीं होता एहसास। लेकिन व्हेन वी आस्क देम तो वो उसके ऊपर बड़ी अच्छी वीडियोस जो है वो बना के ले आते हैं, और इस तरह से आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं ना। मतलब आप यू आस्क देम कि अच्छा जी ये आपके टॉपिक से रिलेटेड है, एजुकेशन है, तो आप वो इन्वॉल्व हैं, अब वो अच्छी से अच्छी वीडियोस बना के जो है वो ले आते हैं। एंड देन स्टेप बाय स्टेप वीडियोस जो है वो और भी किस तरह से होती हैं कि ये जितने भी आपके कोई चाहे मैथ से रिलेटेड है या कोई भी किसी प्रोसीजर से रिलेटेड है, तो वो आप यू कैन शो देम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ऑल द प्रोसेस और प्रोसीजर्स आप उनको दिखा सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वीडियोस एज अ राइटिंग प्रॉम्प्ट भी है। आप उनको जैसे क्रिएटिव राइटिंग हम कहते हैं ना, आजकल स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि खुद से नहीं लिखते हैं, उनकी क्रिएटिव राइटिंग जो है वो बहुत पुअर है, और वो चूंकि जैसे आप बात करते हैं कि सिर्फ रोट मेमोराइजेशन है, तो आप इसके थ्रू छोटे छोटे क्लिप दिखा के हम कि अच्छा आप इसके बारे में लिखें, व्हाट यू आर सीइंग आप इसके बारे में लिखें, 2 4 3 4 सेंटेंसेस जो है दे कैन राइट, और इसके बाद फिर वो इस हैबिट में खुद ही आ जाते हैं कि खुद से भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद बहुत सारी चीजें जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं विच आर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, तो वो भी अंडरस्टैंड करने में उनको इजी हो जाता है। जैसे अगर आपकी ट्रेनिंग सेशंस में अगर मेरा ख्याल है कोई रिसर्च के ऊपर भी शायद कोई है अगर आपके, तो अगर आपको उसके अंदर कोई भी रिसर्च से रिलेटेड किसी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, तो आप देखिए यूट्यूब के ऊपर इतनी वीडियोस अवेलेबल हैं कि लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, डाटा कलेक्ट कैसे करना है, ये सारी है। तो आप यू कैन वॉच एंड लर्न योरसेल्फ। आप खुद से भी उसके अंदर बहुत सारी चीजें टीचर भी सीख सकते हैं और अपने स्टूडेंट को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। और आप अब आपके लिए जो टेक होम असाइनमेंट ही मैं कह सकती हूँ कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो एक्सरसाइज आपने करनी है वो ये करनी है कि अपने किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो सर्च करनी है खुद से। सो अगर हम कहीं फेस टू फेस सेशन होता तो डेफिनेटली हम कंप्यूटर लैब में बैठे होते तो मैं आपसे कहती अच्छा चलिए जी अब आप अपनी वो सर्च करें और मुझे दिखाएं। सो आप उसको सर्च करेंगे एंड यू विल बी अमेज्ड कि कितना कुछ मटेरियल जो है रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग इस यूट्यूब के ऊपर जो है वो मौजूद है। सो देन नेक्स्ट इज द ब्लॉग। आई थिंक इफ हैव यू हर्ड अबाउट ब्लॉग्स और नहीं, कि ब्लॉग इज एन एब्रीविएशन या एक एब्रीविएटेड वर्ड है वेब लॉग। लॉग आपको पता है लॉग का वर्ड हमेशा किसके लिए यूज होता है, डायरी राइटिंग। पास्ट में जब ये सारा मीडिया और ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, वी यूज्ड टू राइट आवर डायरीज, हमारी पर्सनल डायरीज होती थी जिसके अंदर हम लिखा करते थे। अब वो तो एक पर्सनल डायरी थी जिसके अंदर हम अपनी मेमोरीज अपने एक्सपीरियंसेस को लिखते थे। अब ये जो विद इंटरनेट जो है, अब ये ब्लॉग एक्चुअली कॉन्सेप्ट यही था कि द पीपल यूज टू राइट, लेकिन ये है कि अब ये इज नो मोर द पर्सनल, अब ये जो है दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक एंड द स्टूडेंट्स। सो इट्स अ काइंड ऑफ ऑनलाइन डायरी और जर्नल है
सो ब्लॉग्स नॉट नेसेसरली प्राइवेट, और ये मतलब आप इसके लिए ऑडियंस होते हैं, दे आर जस्ट लाइक अ डायरी, और उसके अंदर आप उसको अपनी चीजें जो है वो लिख सकते हैं। अब ब्लॉग जो है हम एजुकेशन में किस तरह यूज कर सकते हैं। ब्लॉग्स भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो ये जो सेलिब्रिटीज हैं इन्होंने अपने अपने ब्लॉग बनाए, पीपल यूज टू रीड देम। लेकिन ये है कि नेट के ऊपर अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉग्स जो है वो निकल आते हैं, जिसमें जो रिसर्चर, एक्सपर्ट्स, टीचर्स उन्होंने अपने ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, और फिर वो उसके ऊपर वो लिखते हैं एक्चुअली बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो उसके अंदर लिखते हैं। और फॉर इंस्टेंस अगर आप केमिस्ट्री के टीचर हैं तो आपने अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया है क्लास के अंदर और आपको लगा कि ये टेक्निक बड़ी सक्सेसफुल थी जिससे वो एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो ये राइट अबाउट दैट, आपने ब्लॉग बनाया हुआ उसके ऊपर लिखते हैं। अब ये शेयरिंग है with the students or with the rest of your जो टीचर कम्युनिटी है उसके साथ ही होती है। और इसके बाद ब्लॉग अबाउट यानी कोई भी एक टॉपिक है उससे रिलेटेड भी आप, अगर आप सब अपना अपना ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो आप उससे ऑनलाइन डिस्कशन भी कर सकते हैं और लोगों के लिए इंफॉर्मेशन का सोर्स भी है। अब जैसे फ्लिप्ड क्लासरूम जो है एक नई अप्रोच है टीचिंग लर्निंग की, तो उसके ऊपर अगर किसी ने लिखा है तो आप कहते हैं अच्छा मैं जरा देखूं ये फ्लिप क्लासरूम क्या था, ये तो नई चीज आई है, तो देन यू स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट इट और फिर आप उससे क्वेश्चन भी पूछते हैं। सो दैट इज हाउ इट बिकम्स द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब उसमें क्या है कि कैसे आप यूज कर सकते हैं। टीचर कैन यूज ब्लॉग्स टू पब्लिश देयर असाइनमेंट्स। आप कहते हैं अच्छा जी मेरा ब्लॉग है, मैंने इसके ऊपर अगली असाइनमेंट आपकी लिख दिया, अब आप उसको विजिट करें। अब वो इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि अच्छा रीडिंग मटेरियल है जो आपके स्टूडेंट के लिए यूजफुल होगा, कोई वेब लिंक्स हैं या कोई और चीज़ है, तो आप उसको अपने ब्लॉग के ऊपर लिंक वो डाल देते हैं और अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि मेरे ब्लॉग से आप वो रीडिंग मटेरियल जो है वो ले लें। इसी तरह से कीप स्टूडेंट एंड इवन पेरेंट्स अप टू डेट ऑन द क्लास इवेंट्स। जो भी आपके जो क्लास के अंदर चल रहे होते हैं सिलसिले, एग्जाम कब होंगे, टेस्ट कब होंगे और असाइनमेंट कब ड्यू हैं, ये सारी चीजें आप यू कैन राइट ऑन द ब्लॉग। और टीचर कैन आल्सो यूज ब्लॉग्स टू हेल्प स्टूडेंट्स मास्टर कंटेंट एंड इंप्रूव देयर राइटिंग। यानी वो जाहिर है अब चूंकि उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, सो इफ दे आर विजिटिंग द ब्लॉग्स कंटिन्यूअसली रेगुलरली तो उससे बहुत ज्यादा लर्निंग होती है। और फिर अगर इफ द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू राइट देयर ओन ब्लॉग तो उनकी राइटिंग स्किल्स भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती हैं। Student can use blog to publish their writing and also student will also create their own blogs, और उससे जो है वो that will be very I think interesting activity for them if you ask your student कि आपने blogs बनाए और उसके अंदर लिखें about your activities, about your learning experiences, about yourself, तो आप देखें कि कितना कुछ वो उसके अंदर लिखेंगे। So again there are two things here. edublog.com is the site where there are lots of educational blogs available there. बहुत सारे एजुकेशन के टॉपिक से रिलेटेड टीचर्स के, एक्सपर्ट्स के, रिसर्चर के ब्लॉग्स हैं जिन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। इसी तरह से इफ यू क्रिएट योर ओन ब्लॉग, अगर आपने अपना बनाया है तो wordpress.org इज अ वेबसाइट जहाँ पर अपना ब्लॉग जो है वो आप उनको पब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ब्लॉग के लिए आपको एक साइट चाहिए ना जहाँ पर आप अपना ब्लॉग क्रिएट करेंगे इंटरनेट के ऊपर। तो ये जो वर्डप्रेस वाले हैं .org ये फ्री साइट आपको दे देते हैं। आप उनको बताएं कि मेरा इस टॉपिक सच एंड सच टॉपिक पे एक ब्लॉग है, तो वो आपको एक फ्री साइट जो है वो अवेल दे देंगे और जहाँ पर अपना यू स्टार्ट राइटिंग योर ब्लॉग और अपनी साइट जो है वो क्रिएट हो जाती है। देन अगेन आपकी जो टेक होम असाइनमेंट है वो यही है कि आप edublog.com से अपने टॉपिक से रेलेवेंट जो है वो ब्लॉग सर्च, इसको सर्च पे जाएं और आप देखें कि कितने ज्यादा ब्लॉग जो हैं वो अवेलेबल हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट एरियाज, और आप उसको खुद भी यू कैन बेनिफिट योरसेल्फ एंड योर स्टूडेंट्स एज वेल। देन वेबक्वेस्ट, आई थिंक वेबक्वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा दैट इज नॉट वेरी मच कॉमन इन यूज बट इट इज वेरी यूजफुल। अगर हम एज अ टीचर इसको एज अ लेसन प्लान के ऊपर यूज करें तो दैट विल बी, आप ये समझिए कि वेबक्वेस्ट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेसन प्लान। अब वेबक्वेस्ट जो है इज अ इंक्वायरी ओरिएंटेड लेसन फॉर्मेट in which most of all the information that learners work with comes from the web. और ये जो वेबक्वेस्ट का मॉडल था दैट्स व्हाट डेवलप्ड बाय द बर्नार्ड डॉच और सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी और फरवरी 1995 में। देखिए कितने पुराने वक्त से उसने बनाया हुआ था, हमें पता ही नहीं, हम इसको यूज ही नहीं करते हैं। So webquest is an inquiry based learning tool
which encourages students to become responsible for their own learning. जैसे आपको लगता है कोई एक टॉपिक है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का है और आपको लगता है कि आपके वर्बल लेक्चर से उनको कुछ आइडिया तो हो जाएगा लेकिन बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप उसका एक वेब क्वेस्ट बना लें। वेब क्वेस्ट में क्या होता है कि आप उसमें जो लर्निंग मटेरियल है वो भी डाल देते हैं एंड प्लस जो स्पेसिफिक टास्क और एक्टिविटीज हैं वो भी उसके अंदर लिख देते हैं कि अब ये करना है, अब इसके बाद दूसरे स्टेप पे आपने ये एक्टिविटी करनी है, फिर ये करना है। तो इस तरह से वो एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेसन प्लान है जिसमें कि स्टूडेंट जो है उसके उनके पास रीडिंग मटेरियल भी है और प्लस द डिटेल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज जो कि उनको करनी है वो भी अवेलेबल है। So they are given links to the information available on the web which they use to acquire knowledge. अब उसके अंदर वेब क्वेस्ट का बेनिफिट आपको क्या है कि आपने खुद से लिख के कोई इंफॉर्मेशन डालनी जरूरी नहीं है। इंटरनेट के ऊपर जितनी भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है बस उनके लिंक डाल दें उसमें। So that is how it is helping you. और अपने स्टूडेंट को वो दे दें, उनसे कहें कि अच्छा चलिए जी आप इसके ऊपर ये मैंने सारा वो इस टॉपिक से रिलेटेड ये एक डाल दिया है, आप उसको फॉलो करें और इसकी एक्टिविटीज करें एंड देन कम बैक टू मी। और फिर वो आप उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि क्या कौन कौन सी एक्टिविटी की हैं और क्या उनकी लर्निंग है। सो देन वेब क्वेस्ट प्रोसेस क्या होता है कि इसके अंदर वेब क्वेस्ट जो है आपने जब बर्नार्ड डॉश ने बनाया है इसको तो उसे कहा है कि इसके 6 पॉइंट्स हैं या 6 उसने पॉइंट्स को कहा है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वेब क्वेस्ट के। तो इफ यू वांट टू डेवलप योर ओन वेब क्वेस्ट तो आप उसके अंदर 6 पॉइंट दे आर इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ओरिएंट स्टूडेंट्स एंड कैप्चर्स देयर इंटरेस्ट। अगर आपने किसी भी टॉपिक से जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या है तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डाल दें कि व्हाट इज दिस अबाउट, क्या इस टॉपिक में क्या है, इसकी क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके डाल दें। देन द टास्क डिस्क्राइब द एक्टिविटीज एंड द प्रोडक्ट्स। फिर आप उसके व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू, क्या क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज उनको करनी है वो आप उसके अंदर ऐड कर दें, वो लिख दें, क्वेश्चन उसके लिख दें, दे विल डू एट देयर ओन। देन प्रोसेस, एक्सप्लेन स्ट्रेटजीज स्टूडेंट शुड यूज टू कंप्लीट द टास्क। कि जो भी टास्क या एक्टिविटी आपने दी है उसका एक आप उनको एक्सप्लेन भी करते हैं कि हाउ टू गो अबाउट, यानी आप जैसे से कहें कि दिस इज द टास्क व्हिच यू आर बीइंग असाइंड। अब उससे रेलेवेंट मटेरियल ऐसे पहले रीड करें, फिर उसके बाद कैसे इसको सर्च करें, फिर उसके बाद उसमें किस तरह से आप काम करके इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। देन रिसोर्सेज, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जितने भी रीडिंग और उससे रिलेटेड रिसोर्सेज हैं आप उसके जो इलेक्ट्रॉनिक लिंक्स जो हैं उसको दे दें। तो स्टूडेंट व्हेन दे वर working on the any task or assignment, so they can read from them, get the information in order to complete the task. Then evaluation measures the results of the activity. आप उसके अंदर छोटी सी एक evaluation का भी वो डाल दें जिससे वो उसको भी fill करें, so that it will be helping them as well, students के अच्छा कितना उन्होंने learn कर लिया और कितना जो है वो अभी रहता है। जैसे आप 2-3 क्वेश्चन दे दें और उसके अंदर ऐड कर दें, so it will become a complete lesson plan. And then conclusion, of course, sum up the activity and encourage student to reflect on its process result, और उसके ऊपर उनकी कोई ऐसी चीज है वो इस तरह से करें। तो इस तरह से ये जो वेब क्वेस्ट है that would be very effectively utilized। और ये वाला जो एक वेबसाइट है webquest.org, इससे बहुत सारे वेब क्वेस्ट डेवलप भी सैंपल्स भी पड़े हुए हैं उसके ऊपर, और उसका रूब्रिक किस तरह से आप बनाएंगे वो भी आपको इसके अंदर गाइडलाइन जो है वो मिल जाएगी। सो यू कैन डेवलप योर ओन इलेक्ट्रॉनिक लेसन प्लान भी आप कह सकते हैं और वेब क्वेस्ट इन ऑर्डर टू एंगेज योर स्टूडेंट इनटू क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। So then another is very important और यूजर फ्रेंडली रिसोर्स इज द विकी। विकी का नाम आपने कभी सुना हुआ है किसी फॉर्म में? Are you familiar with the wiki word? Hello? किसी फॉर्म में विकी को आपने सुना हुआ है? जी मैम, विकिपीडिया बिल्कुल जी, सही। विकीलीक्स। ये विकिपीडिया जो है उससे हम सब बहुत फेमिलियर है ना, मतलब वो विकिपीडिया इसकी एक वो फॉर्म है जो कि हम तक आई है और एवरीबॉडी इज वेरी मच फेमिलियर विद दैट, उनको उसका पता है। अब ये एक्चुअली है क्या?
तो ये क्या है कि wiki can be defined as a system that allows one or more people to build up a corpus of knowledge in a set of interlinked web pages using a process of creating and editing pages. अब जिस तरह मैंने वेब क्वेस्ट की बात की थी आपसे, अब वेब क्वेस्ट तो एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप उसके अंदर उनकी एक्टिविटीज और उस चीजों को दे रहे हो और उसके बाद उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसको करेंगे। विकिपीडिया एक्चुअली क्या है कि आपने वो पूरा एक रिसोर्स उसी तरह से क्रिएट किया, आपने उनको एक्टिविटीज भी दे दी, टॉपिक्स भी बता दिए, वीडियोस भी ऐड आप उसके अंदर कर सकते हैं, ऑडियोज वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें ये जो विकी के प्लेटफॉर्म्स है इसके ऊपर आप कर सकते हैं। अब आपने स्टूडेंट को जब उसके अंदर असाइन किया टास्क, आपने उनके ग्रुप बना दिए अगर, तो अब उसमें विकी एक हमें जो प्रोवाइड करता है वो ये करता है कि प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग पेजेस, वो पेज क्रिएट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। यानी आपने जैसे एक हम ग्रुप असाइनमेंट अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, तो वो एक स्टूडेंट ने कुछ लिखा और विकी के ऊपर उसको पोस्ट कर दिया, तो अब दूसरे स्टूडेंट का ये ख्याल है कि नहीं इसमें से ये जो सारी बातें ठीक है लेकिन ये 2-4 लाइनें जो है वो ठीक नहीं है, वो उसको एडिट कर लेगा। सो इस तरह से करते करते पूरे ग्रुप में जो है वो फिर एक फाइनल शेप में एक बड़ी अच्छी कोलैबोरेटिव एफर्ट से एक एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। So it is a web-based tool or which users collaboratively add, delete, modify content directly from the web. Then wikis can increase educational productivity. कैसे? Wikis support collaborative learning because wikis can enable group of students to work together to solve a problem, complete a project, etc. देखिए इसमें जो collaborative work है इसके बारे में मैं आपसे जो बात जो मेरी जो एक reservation है वो ये है कि usually what happens into our classrooms, we don't engage our students into collaborative work. और चूंकि हम उनको कलेक्टिव या ग्रुप वर्क या कोलैबोरेटिव वर्क में इंगेज नहीं करते हैं, इसलिए आप मेरे से एग्री करेंगे कि हमारे स्टूडेंट किस तरह के हो गए हैं कि वो अकेले अकेले काम करना चाहते हैं और जो वो काम करते हैं वो छुपाते हैं एक दूसरे से, वो शेयर भी नहीं करते। तो और वो इस तरह से हमने उनको चूंकि वी डोंट मेक बिट ऑफ वर्किंग टुगेदर। मैम इजाजत दें तो मैं गुजारिश करूंगा एक अपनी सबमिट करूं। हमारा क्योंकि एग्जामिनेशन सिस्टम इस तरह का है, अदरवाइज यूईटी में ऐसा चल रहा है कि वहां पर स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया जाता है और अगर एक अच्छा स्टूडेंट है और वो अगर वो शिकायत करे कि दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं वो कोलैबोरेट नहीं कर रहे तो उनको अलग समझाया जाता है और वो जो स्टूडेंट शिकायत करता है उसको स्नब किया जाता है कि अब जो दौर है वो मल्टीनेशनल कंपनीज का है एंड यू हैव टू ड्राइव दो स्टूडेंट्स विद यू टू मीट द सक्सेस। अब डिपेंड करता है एग्जामिनेशन सिस्टम पे। हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम तो ये है कि कौन पोजीशन लेता है। देखिए मैं मानती हूँ कि एग्जामिनेशन सिस्टम है, आपका क्या ख्याल है अगर हम यही बात कहते रहें कि एग्जामिनेशन सिस्टम है तो क्या हम अपने सिस्टम को चेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। अच्छा और हम अपनी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं, हम अपनी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप ये आवाज हाई अप तक पहुंचाएं। ये गुजारिश ठीक बात है। हाँ जी मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ कि आप सही कह रहे हैं कि बात बिल्कुल आपका कंसर्न ठीक है और सारा टाइम हम उसी के पीछे भाग रहे होते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करना है और इस तरह से करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं अब भी ये तो हम पब्लिक सेक्टर के जो कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं या उनका ये अभी मेरी एक स्टूडेंट एमफिल की है, उसने इस्लामाबाद के अंदर एक स्कूल है उसका नाम ज़हन से मेरे निकल गया, वो बाकायदा स्कूल लेवल पे एलएमएस यूज कर रहे हैं और उनको कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज अपने जो है वो दे रहे हैं उसके लिए। अब देखिए आखिरकार उन स्टूडेंट्स ने भी अल्टीमेटली कौन से एग्जाम से पास होना है, यही मैट्रिक एफए इन्हीं से पास करना है ना। लेकिन वो कोई कहते हैं कि एंथुसियास्टिक वो है, वो कहते हैं कि नहीं स्टूडेंट की डाइवर्स ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये एक ग्रुप स्टडी ये ग्रुप स्टडी काइंडली माइक्स ऑफ करें और ये इस तरह से आप देखिए हमने उनको फिर तो
इस सारी ये जो सारी चीजें ना, इसका तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। फिर तो हमारे बच्चे जो है ना वो बिल्कुल वही रह गए, जाहिल के जाहिल ही रह जाएंगे। वो कभी अगेन आपको मैं बता रही हूँ कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपका बहुत सारा टाइम और एफर्ट्स इसी उसमें जाती हैं कि कोर्स कंप्लीट करना है और उनको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो लेकिन आप सोचें कि अब वो वाले बच्चे, मुझे आप एक बात बता दें, अभी हम इस चीजों से बड़ा सफर कर रहे हैं। वो सफरिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है कि अब वही जो रोट मेमोराइजेशन वाला बच्चा जब 1050 में से 1045 मार्क्स ले लेता है, इसके बाद वो एफएससी के बाद एग्जाम में भी कोई इतने ही नंबर ले लेता है और वो मेडिकल में चला जाता है। अब देखिए आजकल हम मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है जिससे हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और एक बात जो है हमारे घरों में एक जनरल परसेप्शन आ रही है कि डॉक्टर्स आजकल की उनको समझ ही कुछ नहीं आता, बीमारी वो कोई डिजीज को आइडेंटिफाई नहीं करते, राइट ट्रीटमेंट नहीं करते। बात अगेन यही होगी कि जब हम इस तरह के रोट मेमोराइजेशन जो रट्टे वाले बच्चों को जब हम आगे लेके जाएंगे, उनकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो उनकी क्रिएटिविटी बिल्कुल भी नहीं होगी। ये थोड़ी सी हमने उनके साथ एक हमदर्दाना उसमें बात है। देखिए बात क्या है कि हम सिर्फ क्यों एग्जाम को फोकस करते हैं, हम उन स्टूडेंट्स के अपने बच्चे, देखिए हमारे बच्चे भी तो इन्हीं स्कूलों और इनमें पढ़ रहे हैं ना, हम उनके साथ हमदर्द क्यों नहीं, हम सिंसियर क्यों नहीं है कि रट्टा तो हो गया, लेकिन जो उनका फालतू टाइम इन गैजेट्स के साथ फजूल की एक्टिविटीज में जाता है जिससे हम अनॉयड है एज अ पेरेंट, हम एज अ एल्डर बहुत अनॉयड है, हम उनको क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे इन प्रोडक्टिव। अच्छा अगर कोई बात नहीं, रट्टे के साथ साथ अगर कोई कॉन्सेप्ट वो सीख भी लेंगे तो उसमें कोई हार्म तो नहीं है ना, कोई बुराई तो नहीं है ना उसके अंदर, और बल्कि उनको उसके साथ उस रोट मेमोराइजेशन में भी हेल्प मिलेगी जब वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते। तो थोड़ा सा हमें भी फॉरवर्ड लुकिंगली देखना है, इन चीजों को हम नहीं लेके आएंगे तो देखिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा जब हम कहीं पर इस तरह से मूव आएगी, आपकी तरफ से भी आएगी, हम उसको डिमांड आएगी होगा, लेकिन क्या उस वक्त तक हमने अपने बच्चों को वही इग्नोरेंट ही रहने देना है, वहीं उसी जगह पर रहने देना है? और आप इसकी आगे सोचे ना, जैसे मैंने आपको एक मेडिकल प्रोफेशन की एग्जांपल दी है, सेम इज द केस विद इंजीनियरिंग और अदर फील्ड्स, जहां पर रोट मेमोराइजेशन के साथ वो कोई क्रिएटिविटी कर नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज उनकी वहीं की वहीं रह जाती हैं और वो टाइम सारे का सारा कहाँ जा रहा है उनका, वो सारा उन वीडियो गेम्स और उसको प्ले करने में जाया करवा रहे हैं हम उनसे। तो सोचें थोड़ा सा कि एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हमने इस यंग जनरेशन को कहाँ लेके जाना है, किस तरफ लेके जाना है। हम अगर उनको कह देंगे ना कि हम देखिए आज क्या सोच सकते हैं कि आप अपने बच्चों को लैपटॉप और ये सारी चीजों से हटा दें, आप कहें कि ये सारी चीजें, क्योंकि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स तो आ रहे हैं ना हमारे सामने, ये नहीं पॉसिबल है। अब हमने ये सोचना है कि ठीक है चलो ये चीजें आ गई, कोई बात नहीं, हमने इनको इफेक्टिवली या कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज पॉजिटिवली कैसे करना है। तो अगर हम यही एक्सक्यूजेस देते रहेंगे कि अच्छा एग्जाम, देखिए स्टडी जो टीचिंग लर्निंग, मैं हमेशा टीचिंग लर्निंग की बात करती हूँ, वो सिर्फ एग्जाम तक नहीं है, वो तो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग रट्टे से नहीं आती। अगर हम इसको कंडेम करते हैं कि रोट मेमोराइजेशन बुरी है, गलत है, तो हम उसका एक वे आउट सोचें। ठीक है एग्जाम भी दे लें वो, लेकिन वो उसके साथ साथ एक अंडरस्टैंडिंग रखने वाले बच्चे भी बने, क्रिएटिव भी हो। रोट मेमोराइजेशन से क्रिएटिविटी जीरो है। जैसे अब हम उनको ये कह देते हैं इंग्लिश या उर्दू का कि ऐसे याद कर ले, तो जब उनको ऐसे याद कर लेते हैं वो A to Z वर्ड टू वर्ड ऐसे लिख तो लेते हैं याद करके, लेकिन अगर हम उसी चले कायदे आजम और इलामा इकबाल तो वो हो गए ना जिनके ऊपर एक हिस्ट्री है और उनके कुछ चीजें फैक्चुअल हैं। अब आप सोचिए अगर हम अपने बच्चों को कहेंगे एक रेनी डे के ऊपर कुछ लाइनें लिख लें, वो भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हालांकि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं उस रेनी डे को, देख रहे हैं, लेकिन वो वही लाइनें लिख के लाएंगे जो उन्होंने रटी हुई थी अपने कोर्स वर्क के ऊपर, यानी वो 2 लाइनें भी क्रिएटिवली नहीं लिख पा रहे। तो क्या इस चीज का हमें एहसास है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं और कहाँ पर हमने उनको लेके जाना है? उसके लिए हमें थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर करनी पड़ेगी।
हम सिर्फ उसको एग्जाम एक हमारा एंड पॉइंट ना सोचें, हम उसकी एक सिंपैथेटिकली सोचें कि हमारे बच्चों को सीखने हैं ये कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए ये बात ये हो रही है कि वो सीखने के लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, ये टेक्नोलॉजी हमें फैसिलिटेट करेगी। हम उनको बियॉन्ड द स्कूल, बियॉन्ड द कॉलेज, बियॉन्ड द यूनिवर्सिटी एंगेज करें इन चीजों में, कि वो इन चीजों को इन्हीं के हेल्प से अपनी स्टडी को और लर्निंग को फैसिलिटेट करें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। So using wikis effectively may help your student reach Bloom's higher order thinking skills। वो आती नहीं है हमारे में, higher order तो बात ही नहीं है कहीं पर, हम तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग के लेवल पर हैं। So wikis promote active learning where students can actively participate in educational activities like writing, discussion। ये सारी चीजें देखिए, वो आप सोचें, मुझे I remember my father, वो जब वो अपना पढ़ते थे, वो जब पाकिस्तान बना था तो ही वॉज इन स्कूल में थे या किसी उसके थे, इसके बाद फिर वो कॉलेज में पाकिस्तान में आए, वो जाना। अब वो जब अपनी बातें बताते थे, मैं कहती हूँ वो कल्चर ही खत्म हो गया कि व्हेन दे गो टू द कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो वो स्टूडेंट्स यूज्ड टू डिस्कस। अब मुझे बताएं कितनी डिस्कशंस है हमारे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, ये जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस है, हम तो कुछ और ही वो बातें बच्चे जो है वो कर रहे हैं, इसलिए कि हमने उनको उसके अंदर वो कल्चर ही खत्म करा दिया कि वो डिस्कशन भी कोई चीज है, राइटिंग भी कोई चीज है। उनको पता है कि बस जो लेक्चर टीचर का वो कैसे सुनते हैं, बिल्कुल बोरियत के साथ सुनते हैं, उनको पता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने यही रट ही लेना है ना, इसलिए वो उसके अंदर भी इन्वॉल्व नहीं होते। So Wiki can help you create interactive learning environments. Wiki can help you promote open dialogue and encourage community building। यानी आप उस विकी के अंदर आप अपने स्टूडेंट को भी और किसी को भी इन्वॉल्व करके उनके साथ डायलॉग्स और ये चीजें कर सकते हैं। Wiki can help you prepare your student for 21st century marketplace by developing digital literacy skills। आप मुझे बता दें कि क्या इसी उससे हमारे मुल्क के अंदर तो शायद वो जो मेडिकल की डिग्री आपको पिछले दिनों पता चला है, सऊदी अरब से और इन कंट्रीज ने हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको भेजना वापस शुरू कर दिया कि उन्होंने कहा है कि इनकी डिग्री डाउटफुल है, क्योंकि उन्होंने उसकी ये बात नहीं, उस पर बड़ा शोर मचा, पॉलिटिकली बड़ी ये बात हुई, ये सारा कुछ हुआ, लेकिन मुझे ये था कि रियलिस्टिकली उन्होंने ये भी देखा होगा कि वो परफॉर्म तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनकी कोई अच्छी स्किल्स और वो चीजें तो सामने आ ही नहीं रही हैं, तो इसलिए उन्होंने ये बात नहीं देखा होगा ना। अब हम भी तो ये सफर कर ही रहे हैं ना, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, कुछ का कुछ बीमारी कुछ होती है, उसके बाद उसका कुछ और ही फॉर्म होके या कुछ और ही कुछ करके तो ये मसले मसाइल हैं, वो इसी वजह से हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है। So Wiki can improve the student writing skills as well। और इसके बाद हम कब यूज कर सकते हैं विकी को? फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट्स, अगर आपने उनको देना है, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है, रीडिंग के लिए, यानी आपने इनको कोई एक रीडिंग के लिए पेज दे दिया, इसके बाद आप उस पर कमेंट करें, कमेंट्रीज जो होती हैं क्लास के अंदर, जो आपने कोई बात की उसकी कोई समरी लिखनी है, नोटबुक्स है, डिस्कशन एक्टिविटीज हैं, क्रिएटिव कोलैबोरेटिव स्टोरीज हैं, और पीयर फीडबैक है, एक दूसरे को फीडबैक दें उनकी राइटिंग पे, रिसोर्स रिपोजिटरी आपके पास बन जाती है, और ऑल्सो आप अपना जो भी टीचिंग मटेरियल है उसके ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। सो देन कैसे आपने करना है कि आप अपने विकी को यूज करते हुए कि सेट क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी उसके ऊपर ये नहीं हो कि हर चीजें ऐसे ही ओपन नहीं है, आप उसके ऊपर बाकायदा व्हाट आर स्टूडेंट एक्सपेक्टेड, उस क्लियर रूल्स बनाएं। Let student know what you expect and how student work will be evaluated. Include detailed instructions, give authentic assignments, then clearly define students' roles and activities, यानी उन्होंने क्या करना है, ये सब कुछ उनको पता होना चाहिए कि what they want to do and how to do. And then closely monitor students' activities, ask student to review and comment on each other's entries, क्योंकि उसके अंदर एक पूरा रिकॉर्ड बनता चला जाता है ना, जिसने कमेंट किया, जिसने उसको एडिट किया, तो आप उसको लॉग पूरे को ट्रेस कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स को भी पता है कि टीचर कैन ट्रेस व्हाटएवर दे हैव रिटन ओवर देयर। अच्छा, अब ये विकी अब कैसे हो, मतलब आपको लगेगी ये सारी बात तो कर ली, लेकिन अब आप विकी कहाँ से आए? तो विकी मैट्रिक्स एक वेबसाइट है, www.wikimatrix.org। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ विकीज, बहुत सारे, कितने आपको मिलेंगे, वहां पर पूरी एक लिस्ट है, और वो एक टेबुलर फॉर्म में उन्होंने वो लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें हर विकी के फीचर्स आगे बताए हुए हैं
कि ये विकी आपको क्या क्या कौन कौन से फीचर प्रोवाइड करता है। तो आप अकॉर्डिंग टू योर ओन यूज आप उसमें से अपने लिए एक विकी सेलेक्ट कर लें। बेसिक वर्जन्स ऑफ विकीज जो हैं वो फ्री होते हैं, आपको उसमें कुछ नहीं करना, बस आपने अपना एक अकाउंट बनाना है, एक अपनी स्पेस बनानी है और उसके बाद अपने स्टूडेंट्स को उसके अंदर एनरोल कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है और उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अंदर कोई बहुत एडवांस या सोफिस्टिकेटेड फीचर्स चाहिए होते हैं तो देन यू हैव टू सब्सक्राइब, और वो सब्सक्रिप्शन फी इज ऑल्सो वेरी मिनिमम, कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। इवन अगर इफ यू फाइंड इट वेरी यूजफुल, मैं हमेशा कहती हूँ दिस इज अ वेरी यूजफुल interface or platform, so even organization can have their own wiki, वो एक पूरा जो है वो क्लासरूम विकी या अदर उसके जो वर्जन्स होते हैं जो कि अब अगर सब्सक्राइब कर लें तो all the teachers can use them. So ये wiki matrix से you can select the wiki and this is your take home assignment कि आप इसको यहाँ से आप अपना विकी जो है वो सर्च कर सकते हैं और then you can learn के how to utilize that wiki into your teaching learning process. So I think that was all for today and I hope you find it useful or maybe you get some of the things or you please try them. ये जितनी भी चीजें हैं ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी और आप उनको जरूर कोशिश करें कि आप जितनी भी चीजें हैं उनको एक एक दफा देखें, सर्च करें, ट्राई करें, देखिए व्हाट विल बी यूजफुल फॉर यू। मैं ये नहीं कहती कि सारी चीजें यूज करें बट एटलीस्ट सम ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू योर ओन रिक्वायरमेंट आप यूज करें। मैडम एक क्वेश्चन